السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے اور رمضان مبارک کی برکتیں بھی لوٹ رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک آخری اشرا چل رہا ہے اور تو سارے بچے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے جو ہے وہ اپنی ترقی کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے دنوں ہم نے سر سید احمد خان کا سبق پڑھا تھا، کہانی۔ امید ہے کہ آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم چلتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کا سبق ہے شاعروں کے لطیفے۔ آج ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف جو ہے تھوڑا سا ہو جائے کہ مولانا محمد حسین آزاد کون تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یعنی مولوی محمد باقر جو تھے یہ ایک مشہور صحافی تھے اور عالم دین بھی تھے۔ تو 1857 کی جب جنگ ہوئی تو انگریزوں نے ان کو غداری کے الزام میں ان کو گولی مار دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ظاہر بھی گھر بار لٹ گیا، یعنی گھر بار جو ہے تباہ ہو گیا۔ تو مولانا محمد حسین آزاد جو ہے یہ اپنے جو ہے وہ رزق کی تلاش میں، مثلاً تلاش معاش یعنی نوکری کی تلاش میں جو ہے وہ دلی چھوڑ دی انہوں نے۔ دلی میں جو کہ یہ رہتے تھے، لیکن دلی چھوڑ کر یہ لکھنؤ چلے گئے، پھر حیدرآباد چلے گئے۔ ویسے بھی ان دنوں دلی کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور اکثر لوگ جو ہے دلی سے لکھنؤ حیدرآباد کی طرف جا رہے تھے۔ پھر لاہور پہنچ گئے، وہاں پہ محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے، یعنی صرف مہینے کے ان کو 15 روپے ملتے تھے۔ اس زمانے میں یہ 15 روپے بھی بڑے زیادہ ہوتے تھے۔ آج کل تو ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی نہیں آتا 15 روپے سے۔ حکومت پنجاب، اور نہ ہی بچے لیتے ہیں، بچے بھی 15 روپے لیتے ہیں۔ لو جی 15 روپے سے کیا آئے گا۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرار اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ تو آخری دنوں میں یعنی کہ ان کی وفات سے بیماری سے پہلے جو ہے یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی کے پروفیسر رہے۔ 1888 میں ان کو دماغی طور پر جو ہے وہ یہ مفلوج ہو گئے تھے۔ ان کی اصل میں ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کا انہوں نے بہت زیادہ صدمہ لیا اور یہ صدمہ ان کے دماغ کو لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ تقریباً 11-12 سال جو اس صدمے میں مبتلا رہے، پھر ان کا جو ہے انتقال ہو گیا، یعنی اسی بیماری میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ آزاد اردو کے ثابت طرز نثر نگار تھے، یعنی کہ اردو کے ایک خاص جو ہے وہ نثر لکھنے والے جو ہے وہ خاص اپنا ایک خاص انداز رکھنے والے تھے۔ ایک اہم بات بتا دوں مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں کہ یہ ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا۔ حکومت نے ان دنوں ان کی اعلیٰ کارنامے، اعلیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نثر میں اعلیٰ لکھنے پر اور ان کی جو ہے وہ تعلیمی قابلیت، ان کے جو ہے وہ اردو ادب میں جو ہے ان کے خاص مقام، ان کے خاص کام کی وجہ سے ان کو شمس العلماء کا یعنی عالموں کا سورج جس کو کہا جاتا ہے اس کا خطاب ان کو دیا گیا تھا۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاطب۔ موجد کا مطلب یعنی اپنے لکھنے کا انداز انہوں نے خود ہی بنایا اور خود ہی اس کو جو ہے وہ انہی پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تمثیلی کا ہوتا ہے ڈرامائی، یعنی کہ ان کے لکھنے کا انداز جو ہے ڈرامائی شکل ہی ہوتا ہے۔ مثلا وہ جب ہم پڑھتے ہیں ان کی کوئی بھی نثر پڑھتے ہیں، کوئی کہانی کتاب پڑھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جو کہانی جو ڈرامے کی شکل میں ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے سے وہ گزر رہی ہے۔ تو اس طرح سے وہ اردو ادب کے باقی جو ان کے عہد کے یعنی ان کے دور کے، ان کے زمانے کے باقی ادیب اور نثر نگار جو ان سے ان کو ذرا منفرد بنا دیتا ہے، ان کا تمثیلی انداز بیان۔ تخیل آفرینی یعنی کہ سوچ، اعلیٰ سوچ کا اس میں نثر میں شامل لکھنا، اور پیکر تراشی، تجسیم نگاری یعنی کہ لکھنے والے کا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا پورا راپا، اس کا پورا جو ہے نقش و نگار اس طرح سے لکھ دینا کہ قاری یعنی پڑھنے والا جو ہے اس کے آنکھوں کے سامنے پورا مجسمہ جو ہے بن جاتا ہے۔ شعریت رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیات حقیقت یہ مبارکہ رہے ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت دلکش شکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ ان کے بعد جتنے بھی بعد میں بھی ادیب آئے، نئی لکھاری آئے، لکھنے والے آئے، ان کو محمد حسین آزاد کے لکھنے کا انداز پسند آیا، یعنی وہ اس سے متاثر ہوئے۔
खूबसूरत दिलनशीन नसर के अलावा इनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज शायरी भी है, चूँकि ये एक शायर भी थे मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद, चूँकि आपने ये ज़ात के ऊपर जो है वो तखल्लुस की साइन भी है, तो आज़ाद जो है ये तखल्लुस लिखते थे अपनी शायरी में, तो ये नसर निगार भी थे और ये शायर भी थे, और उन्होंने जो है वो उर्दू में जदीद शायरी को जो है वो कायम जदीद शायरी को रवाज दिया, जिसकी इब्तिदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मशायरे से हुई। यानी अंजुमन पंजाब जो है कि माता ये जो है अंजुमन पंजाब ये मशायरे मुनक्कद करती थी, जहाँ पे बहुत सारे शोरा को अपनी शायरी दिखाने का मौका मिलता था, तो पढ़ने का मौका मिलता था, जिससे इनकी मकबूलियत में इजाफा होता था। तो यहाँ से इन्होंने जदीद शायरी जो को रवाज दिया, जिसके वो सेक्रेटरी थे। ये अंजुमन पंजाब लाहौर के मशायरों के सेक्रेटरी भी रहे हैं। उर्दू की आज़ाद की तसानी में आब हयात, दरबार अकबरी, नरंगे ख्याल, किस्से हिंद, सुकुंदान फारस बहुत मशहूर हैं। ये इनकी किताबों के नाम हैं। साइम आज़ाद की जो अहम किताबें उनमें आब हयात जो हमारा आज का सबक है शायरों के लतीफ़े, उससे ये उसी किताब से लिया गया है। दरबार अकबरी, नरंगे ख्याल, किस्से हिंद और सुकुंदान फारस जो बहुत मशहूर इनकी किताबें हैं। अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ोका दीवान भी आज़ाद ने मरतब किया। आज़ाद की मौज़ूआती नज़में भी लिखी, इन्होंने बहुत सारी नज़में भी लिखी हैं, जो कि इनके मुजमुआ कलाम है नज़्म आज़ाद, उसमें इनके तमाम नज़में मौजूद हैं। ठीक है, आज हम चलते हैं सबक की तरफ। घर में बैठ के लेक्चर देने का यही एक स्यापा है कि पीछे से बोलने वाले की आवाज़ें काफ़ी आ रही होती हैं, आप लोगों को रोश की आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी, तो सब घरों में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरह। शायरों के लतीफ़े आज का हमारा सबक है कि शायरों के लतीफ़े का मतलब है कि शायर हजरात जो थे ये सिर्फ रोते बसोरते ही नहीं रहते थे, या हर वक्त महबूब की याद में जो है वो तड़पते नहीं रहते थे और पागल ही नहीं रहते थे, बल्कि ये आपस में हंसी मजाक भी करते थे, और एक दूसरे से जब बात करते थे तो कई दफ़ा बातों बातों में शायरी में बात करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाते थे, और इनके शायर जो है बातों आपस में बातें करने में और शायरी में ऐसे ऐसे लफ्ज़ आ जाते थे जिसको पढ़ के हंसी भी आती थी। तो यहाँ पे मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद ने बहुत सारे शायरों जो शोरा हजरात की आपस में गुफ्तगू को और उनकी शायरी को जो बरजस्ता यानी कि अचानक उनके मुंह से जो है ये शेर अल्फाज जो निकलते थे उनको उन्होंने बयान किया कि ये आपस में अचानक उनके मुंह से ऐसे भी शेर लिखते थे कि जिसको पढ़ के हंसी आती थी। तो सबसे पहले जो है हम एक जो लतीफ़ा है शायरों का, ये मुतली लतीफ़ों की शक्ल में ये दी हुई है, और ये सच्चे यानी सारे वाक़यात हैं किस्म के जो मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद ने सुने देखे और इनकी ज़िंदगी में हुए, तो उन्होंने इनको जो है किताबी शक्ल में मुरतब कर दिया। तो सबसे पहला जो लतीफ़ा है वो ये है कि एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। ये लखनऊ में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लखनऊ में मीर तकी मीर, जिसकी हमने पहली गज़ल पढ़ी थी, बहुत मशहूर शायर थे, मिर्ज़ा गालिब इनके बड़े दीवाने थे, बड़े इनके जो है वो चाहने वाले थे और आला कलाम के शायर थे। अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल के बाद मीर तकी मीर जो है ये इनकी शायरी जो है वो पढ़ने के उनकी शायरी जो अल्लामा इकबाल की शायरी से मिलती है। मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो इनका है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इनका पूरा नाम था। तो मिर्ज़ा भी लिखते थे और सौदा भी ये लिखते थे अपना तखल्लुस। तो इन दोनों के कलाम पर दो शख्सों ने, इन दो आदमी थे, वो दोनों इनके कलाम पर बहस कर रहे थे। बहस में तवालत हो गई, बहस इतनी लंबी हो गई कि दोनों ख्वाजा बासित के मरीद थे। यानी वो दोनों जो लड़के थे वो दोनों ख्वाजा बासित एक बुजुर्ग थे, उनके मरीद थे, यानी उनके शागिर्द थे, उनके चाहने वाले थे, उनके पैरोकार थे। उनके पास गए और अर्ज की, यानी आपस में वो इतनी देर बहस करते रहे, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो वो ख्वाजा बासित के पास चले गए और उनसे कहा कि आप फरमाइए, आप ही हमें बताएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहब कमाल है, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा कलाम वाह है। यानी कि दोनों जो है वो दोनों शख्स जो बहस कर रहे थे वो इनकी बहस इस चीज़ पे थी कि एक कह रहा था कि मीर का कलाम ज़्यादा अच्छा है, दूसरा कह रहा था मिर्ज़ा का कलाम ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों इतनी ज़्यादा देर तक बहस करते रहे, और इस बहस में उनके जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो दोनों ख्वाजा बासित के पास गए, तो उनसे कहा कि आप हमें बताएं कि किसका कलाम सबसे अच्छा है, मीर का कलाम, मीर की शायरी ज़्यादा अच्छी है या मिर्ज़ा की शायरी ज़्यादा अच्छी है।
تو ख्वाजा बासत ने कहा कि दोनों की शायरी बहुत अच्छी है, बस इतना फ़र्क है कि मीर साहब का कलाम आह है, आह का मतलब था गम, दुख। ठीक है, ये मीर की, उन्होंने कहा कि मीर की कलामी जो शायरी है उसमें हमें गम का अनासर जो है ज़्यादा नज़र आते हैं, गम दुख के जो अनासर जो है उसमें पाए जाते हैं। जबकि मिर्ज़ा का कलाम वाह है, वाह का मतलब था खुशी। इन मिर्ज़ा के कलाम में हमें हंसी मजाक खुशी और इस तरह की बातें जो है वो मिलती हैं। उसने फिर ख्वाजा बासत ने मिसाल के तौर पर मीर का पहले शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आस्था बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। यानी कहता है कि सरहाने आपको पता है कि सर की साइड पे, सर की तरफ, यानी कि कह रहा है मीर खुद ही अपने शेर कह रहा है कि मीर, यानी कि आपने कहता है कि ये शेर जो शेर है सरहाने मीर के आस्था बोलो, ये मक्ता है मीर की गजल का। तो उसमें मीर कह रहा है, अपने आप से कह रहा है कि मीर के, यानी मीर जो है इसके सरहाने, यानी इसके सर की साइड पे आहिस्ता बोलो, शोर ना करो, अभी टुक, यानी अभी जरा सा बेचारा रोते रोते सो गया है। यानी कि इंतहाई दुखी अंदाज में बयान किया गया कि बेचारा रो रो के सो गया है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा, वैसे मेरे साथ भी अक्सर होता है, जब मैं रोती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो आप लोग भी किसी बात पे अपने अम्मी अब्बू से जिद करते होंगे, जिद करते करते अक्सर बच्चे जो है वो रोते रोते सो जाते हैं। तो वैसे भी रो के नींद जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मीर बेचारा भी रो रो के अपने दुख में गम में रो रो के अभी अभी सोया, तो इसलिए इसके सराहने ज़रा आहिस्ता बोलें। फिर उसने ख्वाजा बासत ने मिर्ज़ा का शेर पढ़ा जिसका था कि सौदा की जो बाले पे हुआ शोर क़यामत। बाली का मतलब भी सराहने है। अब सराहने तो उसने वाज़ेह लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब सौदा ने, ये सौदा का शेर है, मिर्ज़ा, मैंने इसका नाम बताया था, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उनका पूरा नाम था। तो वो सौदा जो है अपनी शायरी में तखल्लुस रखते थे। तो वो अपनी, ये भी उनकी गज़ल का एक मक्ता है जिसमें सौदा खुद से कह रहे हैं कि सौदा की जुबाली पे हुआ शोर क़यामत, यानी वो सौदा के सराहने में जब इतना ज़्यादा शोर हुआ तो खुदाम अदब बोले। खुदाम का मतलब मुलाजम, यानी उसके अदब, बाअदब मुलाजम, जो बाअदब जो उनके गुलाम हैं वो बोले अभी आंख लगी है, यानी वो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं कि शोर ना करें, अभी अभी जो है सौदा साहब जो है ये सोए हैं, तो इसलिए इनके सराहने आके शोर ना करें। फिर इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे, यानी वो शख्स जो कि मोहम्मद रफ़ी सौदा का तरफदार था, उसका चाहने वाला था, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। तो वो मिर्ज़ा के पास, यानी मोहम्मद रफ़ी सौदा के पास है, और उनको सारा किस्सा बयान किया कि इस तरह हमारे दरमियान बहस हुई और हम ख्वाजा बासत के पास गए और उन्होंने हमें जो है ना एक आपका शेर जो है वो सुनाया और एक जो है मीर का। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराया और कहा कि शेर तो क्या मगर दाद ख्वाही उनके दादा की मालूम होती है। तो मिर्ज़ा ने जब शेर सुना, तो उसने जब मीर का शेर सुना तो वो बड़ा हंसे मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि शेर तो वैसे मीर का ही है, लेकिन दाद ख्वाही का मतलब ये नहीं कि जो बात वो कह रहे हैं या जो फरियाद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मीर के सराहने आस्था बोलो अभी टुक, बेचारा अभी रोते रोते सो गया, यूँ लग रहा है कि वो उनका दादा जो है वो ये अल्फाज कह रहा है। मीर खुद नहीं कह रहा बल्कि उनका दादा जो है ये अल्फाज कह रहा है, क्योंकि आमतौर पर दादा दादी को अपने पोते पोतियाँ ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो उनका जो है रोना सोना जो है वो उनको ज़्यादा तकलीफ देता है। तो इसलिए मिर्ज़ा कहते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे मिर्ज़ा वो जो है मीर नहीं ये बात कह रहा है, बल्कि उसका जो है वो दादा जो है ये बात कह रहा है। यहाँ पे दादा से मुराद जो है, यहाँ पे सॉरी मैं गलती कर गई, सॉरी, दादा से मुराद दादा, ये ज़बर है, दादा से मुराद उनकी दाया है, उनकी यानी कि जो उनकी मुलाजमा होती है वो है जो उनको संभालती है बच्चों को। तो यानी कि उसने कहा कि शेर तो मीर का है, लेकिन दाद ख्वाही यानी कि जो कह रही हूँ लगता है उनकी दाया ने अभी भी उनको सुलाया है। तो वो दाया जो उनकी कह रही है कि मीर के सराहने आस्था बोलो, मीर अभी बेचारा रो रो के सोया है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। और कल आप लोगों ने जो है वो इसका सियाको सबाक आपके शरह सरमाए में दिया हुआ है शायरों के लतीफ़े का, तो वो सियाको सबाक आपने याद करना है और इस एक शेर की तशरीह जो मैंने आपको की है इसको आपने, ठीक है, याद करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।